हेलो फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी मैं इतने दिनों बाद अपना वीडियो बना रही हूँ. थिंग इज़ दैट थोड़ी बिजी थी. होप यू अंडरस्टैंड. ओके, तो सब बातों को छोड़ते हुए आज का जो मेरा वीडियो है ये है आज एक हेल्दी रिलेशनशिप के ऊपर. एंड वी हैव टू रिमेंबर 7 थिंग्स अबाउट द हेल्दी रिलेशनशिप. फर्स्ट थिंग इज़ द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स डोंट अज्यूम. ओके, जैसे कि आपने सोच लिया कि हाँ वो बंदे ने ऐसा सोच लिया है, शायद वो ऐसा ही है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. डोंट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन ओके टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विदाउट बीइंग टोल्ड. सो स्पीक ओपनली एंड कामली. यू डोंट थिंक कि मैं ऐसे नाराज़ बैठी हूँ तो वो बंदे ने समझ जाना चाहिए कि हाँ क्या प्रॉब्लम. नो, यू हैव टू स्पीक, और वो भी आराम से, प्यार से. दिस वॉज फर्स्ट, कम्युनिकेशन. सेकेंड थिंग, लिसन. And listening is not just for listening, you have to listen to understand. Okay, and don't think I'm listening, so okay I have to reply, so I'm listening. No, it's not like that. You have to listen to understand what the person actually want to say, and the person want that need a solution for it. So simply what you have to do, need someone. Sometime what happens, people, the person जो आपके सामने बैठा है, they want somebody to just listen. आप उनकी बात सुनो, and that is also without judging. Okay, and next we are having the respect. Okay, the third one will be the respect. Here you have to be very alert. Okay, you have to respect each other, and that is also like love. Here doesn't mean controlling someone. Okay, and give other some space, freedom, with respect. You don't have to judge the person. Okay, this was the third. Now fourth, what is the fourth one? Simple, the fourth one. Here very important, very important. Okay, don't use hurtful words during argument. हम सब आर्ग्यूमेंट करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि आर्ग्यूमेंट से कई बार सॉल्यूशंस निकलते हैं. बट रिमेंबर, when you are arguing, do not use such words which can hurt person for lifelong. Like, argument should be normal, but insulting, humiliating, and intentionally when you are hurting, that is very important. Intentionally लोग hurt करते हैं. person knows कि मैं इसको hurt कर रहा हूँ, मैं इसको hurt कर रही हूँ, जानबूझ के उसको तकलीफ देने के लिए, उसको दिख दूँगी. तो जब आप intentionally when you're hurting, that is the most disrespectful thing. Okay, and this kind of things can never be forgiven. सामने वाला माफ़ नहीं कर पाता कि आपने उसको जानबूझ के इंसल्ट किया है, इस बुरी तरह से इतनी ह्यूमिलेट किया लोगों के सामने आपको, कैसे वो आपको माफ़ करे. Now the fifth thing is that learn to say I am sorry. It's a very small word, a very common word, but people don't say. When you're thinking you're wrong, you have done something wrong to the person, then it doesn't mean if you say sorry you will be small. आप छोटे नहीं बन जाएंगे. Accept your mistake. Realize it कि आपने कितना बुरा किया है, उसके साथ में कितना गलत किया है. Say sorry. And if you're saying sorry, I am telling you, you will build your relationship very stronger. It will be very strong relationship. जब आप सॉरी बोलते हैं, जब आप थैंक यू बोलते हैं, लोग बोलते हैं अरे अपना ही तो है, सॉरी क्यों बोलना, थैंक यू क्यों बोलना. नो, लर्न टू से सॉरी एंड थैंक यू व्हेन यू आर टेलिंग दीज वर्ड्स टू अदर पीपल. व्हाई नॉट टू द पर्सन जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए. सिक्स्थ थिंग, अप्रिशिएट. आप सामने वाले को छोटी छोटी चीज़ों में अप्रिशिएट कीजिए. एंड दिस अप्रिशिएशन, with appreciation, one more thing, that speak I'm proud of you. That's it. इतना भी आप बोलते हैं कि I'm proud of you, I'm here for you. So इतनी छोटे छोटे words भी when you are telling, okay, can I hug you, okay. So these things, small words, small gestures, okay, and find out where the person इज़ गेटिंग हैप्पीनेस. तो उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल रखिए. कई बार पौधों में फूल खिले, द पर्सन इज़ गेटिंग वेरी हैप्पी, अरे फूल खिला है, तो उसकी खुशी छोटी सी फूल खिलने में भी है. तो उसके लिए आप
उसके लिए भी आप हैप्पी हो सकते हैं। ओके, तो जब सामने वाला कह रहा है कि कितना सुंदर फूल खिला है, आप भी खुश होइए, यही नहीं कि आप जाके इस फूल को तोड़ दीजिए। होप यू अंडरस्टैंड। Okay, the last one what I'm saying, the seventh one. Okay, now you have to choose the relationship like everyday kind of thing कि आपको रोज importance देना है अपने relationship को। Okay, now relationship don't like become a strong because here are the no problems, number of problems, like they become strong when two people decide to face problems together. आप लोग प्रॉब्लम से भागते हैं, आपको प्रॉब्लम से भागना नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको समझना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसे आपको साथ में मिल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ही आपका रिलेशनशिप एक अच्छी तरीके से, सही तरीके से चलता है। तो मेरे इन 7 पॉइंट्स को याद रखिए और ट्राई करके देखिए, और विल मीट अगेन। और कमेंट में लिखिए कि क्या आपने ट्राई किया है, इन चीज़ों को कैसे ट्राई किया है, कोई भी एक पॉइंट आपने ट्राई किया हो और उसमें उसको ट्राई करने के बाद में आपकी लाइफ में क्या सुधार आए हैं, प्लीज़ कमेंट, तो मुझे भी पता चलेगा कि किन चीज़ों से ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ा है। यस, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।